Welcome friends, welcome to the course of IC engine and compressor. Today we are going to learn about engine nomenclature. It is a very important topic regarding IC engine and compressor. You have to know throughout your BTech life and after that the engine nomenclature, and it is the basics of IC engine and compressor parts. Before going through the engine nomenclature, I want to revise our yesterday lecture what we had already taught. We seen that yesterday that different types of heat engine. Basically, two types of heat engine we see that internal combustion engine, that's our syllabus, and external combustion engine and different terms used in IC and EC engine, different between IC engine and EC engine. We see that the in IC engine the uh, petrol or diesel burns inside the engine, and the EC engine, that is popularly known as steam engine, burns outside the engine. Say for example in boiler, that's our the yesterday syllabus. Now we are going through our today's topic, engine nomenclature. Before going to topic, I am drawing a sketch diagram of engine. You can also write with me, or you can also draw with me. This is basic diagram. You can see different diagram in different book, no matter. We are here to see the basics of engine nomenclature. Here spark plug, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग डायग्राम भी दिखाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग जो बेसिक टर्म्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। You can draw with me so that you can understand and able to draw in your university exam. Labeling, inlet valve, or we can also say that it is a suction valve. This is outlet valve, or in other words we can also say that it is an exhaust valve. Exhaust valve. This is water jacket, used for cooling our main cylinder arrangement. Water jacket, कूल वाटर। इसमें क्या होता है, हम लोग ठंडा पानी रखते हैं ताकि हमारा जो इंजन है जो गर्म हो जाता है उसको हम लोग ठंडा करते हैं। कोल्ड वाटर इसके अंदर होता है। हाँ, यहाँ भूल गए हम लोग स्पार्क प्लग। In case of diesel engine, you can't find spark plug, though it is a basic diagram,
So I am mentioning spark plug here. Gudgeon pin, popularly known as gudgeon pin, but some of book we call it as a piston pin because it is attached with piston. Cylinder, connecting rod, these are the different engine parts. Crank rod, oh yes, crank rod is there. Crank rod, crank pin, और इंजन पिन भी बोलते हैं इधर. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर इंजन और इंजन नॉमेनक्लेचर. इनलेट वाल्व और सक्शन वाल्व, इसको डिटेल में हम लोग अभी देखेंगे. इसको फर्स्ट लुक में देखते हैं कौन से पार्ट्स कहाँ होते हैं. ठीक है, तो इनलेट वाल्व, सक्शन वाल्व बोलते हैं इसको हम लोग. आउटलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, वाटर जैकेट फॉर कूलिंग आवर होल अरेंजमेंट, गजन पिन. ठीक है, गजन पिन को हम लोग अलग अलग जगह पे पिस्टन पिन बोलते हैं, लेकिन पॉपुलरली इसको गजन पिन के नाम जानते हैं. जब हम लोग इंडस्ट्री वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे इसको गजन पिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पिस्टन, इसको पिस्टन बोलते हैं, पूरा अरेंजमेंट होता है ये पिस्टन. क्योंकि ये पिस्टन के साथ अटैच होता है, इसका नाम क्या है, पिस्टन पिन भी है. कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड किसको कनेक्ट कर रहा है, क्रैंक और हमारा पिस्टन को कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये कनेक्टिंग रॉड है हमारा. और उसके बाद क्रैंक रॉड, ठीक है, क्रैंक पिन और इंजन पिन. इंजन पिन यहाँ पे क्यों मेंशन किया हम लोग, इसके बाद हम लोग इससे मैकेनिकल वर्क लेते हैं. यहाँ से ये इंजन शाफ्ट के पास कनेक्ट होता है और यहाँ से हम लोग को मैकेनिकल वर्क इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील या और भी जो भी टर्म्स है उसके साथ हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इंजन पिन है. कोल्ड वाटर फॉर कूलिंग. स्पार्क प्लग हम लोग को दिखता है पेट्रोल इंजन में, जब डीजल इंजन में होगा तो ये एब्सेंट होगा. ठीक है, एंड लास्ट सिलेंडर. ठीक है, एक टर्म और आप लोग को आज यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक टर्म और होता है सिलेंडर ब्लॉक. ठीक है, तो सिलेंडर ब्लॉक इज नथिंग बट द होल सेटअप. ये जो सेटअप है पूरा, ये पूरा मिला के यहाँ से इस पूरे सेटअप को एज ए होल हम लोग सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं. ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक को हम लोग वन टाइम कास्टिंग यानी एक ही बार में इसको कास्ट करते हैं और फिर हम लोग इसको यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे सिलेंडर अलग है और सिलेंडर ब्लॉक अलग है. ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक क्या है, एज ए होल जो अरेंजमेंट है उसमें इंक्लूडिंग हमारा क्रैंक पिन, इंजन पिन, कनेक्टिंग रॉड, ये सब पूरा पिस्टन मिला के ये क्या है, सिलेंडर ब्लॉक है. बट सिलेंडर के अंदर क्या है, पिस्टन एंड हमारा कनेक्टिंग रॉड है. ठीक है, समझ में आया. ठीक है, तो एक बार इसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको रफ करते हैं और वन बाय वन कौन से मटेरियल का क्या बना होता है उस पर डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो आइए इसको रफ कर रहे हैं. वीडियो को पॉज करके इसको बना भी सकते हैं आप लोग. इसके और भी पार्ट्स होते हैं, अगर इसके डिटेल में जाएंगे हम लोग तो इसके और पार्ट्स आपको और भी जगह दिख जाएंगे. इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और भी टर्म्स है. ठीक है, तो वो अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें, ये हमारा क्या है, बेसिक्स है. इसके अलावा भी आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स में है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सिलेंडर ब्लॉक. यहाँ सिलेंडर के लिए हम शॉर्ट फॉर्म कर दें, सिलेंडर के लिए CY लिख दिए डॉट ब्लॉक. सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है. ठीक है, तो आइए सिलेंडर ब्लॉक देखते हैं. तो सिलेंडर ब्लॉक इज नथिंग बट इट इज अ मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द वेरियस कंपोनेंट. ठीक है, तो वेरियस कंपोनेंट हम लोग देखे थे, क्या क्या था हमारा, पिस्टन था, कनेक्टिंग रॉड था,
क्रैंक पिन था, क्रैंक था हमारा, ठीक है, इंजन पिन था। तो ये हमारा पूरा मिला क्या है, सिलेंडर ब्लॉक के अंडर में आता है, ठीक है। या हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं, द सिलेंडर ऑफ ए मल्टी सिलेंडर इंजन आर कास्ट एज ए सिंगल यूनिट, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टी सिलेंडर इंजन का जो सिलेंडर उसको हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल यूनिट के थ्रू कास्ट करते हैं, यानी हम लोग मल्टीपल कास्ट नहीं करते हैं या उसको ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, वेल्डिंग नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल यूनिट हम उसको कास्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक होता है। तो लिख लेते हैं, सिलेंडर ब्लॉक क्या है, द मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस कंपोनेंट, the main supporting structure of various component, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते करते हैं, वन टाइम कास्टिंग करते हैं, वन यूनिट एज ए कास्ट एज ए वन यूनिट, यानी एक साथ इसको पूरा हम लोग कास्ट करते हैं, कास्ट एज ए वन यूनिट, ठीक है। इतना समझ में आ गया हम लोग को। अगला सिलेंडर, नेक्स्ट हम लोग सिलेंडर देखेंगे। ये सिलेंडर ब्लॉक याद रखेंगे बार बार, एग्जामिनर हम लोग पूछता है सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर जो हमारा पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड का अरेंजमेंट है, सिलेंडर ब्लॉक में एज ए होल पूरा अरेंजमेंट है, उसमें हमारा क्रैंक रॉड और इंजन शाफ्ट का जो पिन है वो सब आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड है सिलेंडर, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से, अभी डिस्कस भी किए, सिलेंडर क्या है, इट इज अ सिलेंड्रिकल वेसल और स्पेस इन विच द पिस्टन मेक्स अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। फिर डिस्कस करते हैं क्या है, इट इज अ सिलेंड्रिकल वेसल और स्पेस इन विच द पिस्टन मेक्स अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन। It is a vessel in which piston makes a reciprocating मोशन, यानी जो उसका टू एंड फ्रो मोशन होता है वो किसके अंदर होता है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, ठीक है। इतना हम लोग समझ में आ गया है। जो हमारा पिस्टन होता है वो टू एंड फ्रो आगे पीछे जो मूव करता है वो किसके अंदर मूव करता है, सिलेंडर के अंदर होता है मूव, ठीक है। और क्या है, द वेरिंग वॉल्यूम क्रिएटेड इन द सिलेंडर ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द इंजन इज फिल्ड विथ वर्किंग फ्लूइड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब हमारा पिस्टन आगे और पीछे मूव करता है फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर एंड अगेन फ्रॉम टीडीसी टू बीटीसी, ये टीडीसी टू बीटीसी क्या होता है ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो अभी बस याद रखेंगे, जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर मूव करता है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर वर्किंग फ्लूइड होता है, वर्किंग फ्लूइड के साथ वो अप एंड डाउन मूव करेगा, ठीक है। ये किसका बना होता है, मटेरियल साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे किसका मटेरियल क्या है। ये एकेटी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज जो हमारा मेन एग्जाम है, जो हम लोग कंप्रेशन एग्जाम देते हैं बाहर, उसके हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है, मटेरियल किसका क्या बना होता है। सिलेंडर बना होता है, पहले शुरुआत में अर्लियर ये किसका बना होता था, कास्ट आयरन का, ठीक है। तो कुछ हीटिंग प्रॉब्लम होने की वजह से हम उसको किस में कन्वर्ट किए, कास्ट स्टील, और फिर हम लोग को जरूरत पड़े कि इसको और थोड़ा हल्का किया जाए तो हम लोग क्या यूज किए हैं, फिर एल्यूमिनियम। यानी पहले अर्लियर ये क्या था, कास्ट आयरन का बना होता था, देन वी मूव टू कास्ट स्टील। अब देखिए यहाँ कास्टिंग लिखने का मतलब क्या है, इसको हम लोग कास्टिंग प्रोसेस से बनाते हैं इसके पार्ट्स को, ठीक है। कास्ट स्टील एंड देन एल्यूमिनियम,
अभी हम लोग जनरली एल्युमिनियम का बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि एज ए होल पूरा अरेंजमेंट जो हमारा सिलेंडर का होता है उसके अंदर पिस्टन कनेक्टिंग रॉड बहुत भारी हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको हीट के साथ साथ जो उसका वेट है उसको भी हम लोग रिड्यूस करते हैं। हीट हमारा उसमें ज़्यादा जनरेट होता है और वेट को भी कंप्रोमाइज करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं एल्युमिनियम का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एल्युमिनियम से क्या होता है जो सिलेंडर है उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है पिस्टन। पिस्टन हम लोग देखे थे, पिस्टन पिस्टन के साथ क्या था, कनेक्टिंग रॉड अटैच था, कनेक्टिंग रॉड के साथ क्रैंक, क्रैंक रॉड और फिर लास्ट में क्रैंक पिन। डायग्राम सबको याद होगा, बना भी लिए होंगे लोग कॉपी पे आप लोग। तो पिस्टन क्या है, कुछ नहीं है, इट इज द सिलेंड्रिकल कंपोनेंट फिटेड इनटू द सिलेंडर फॉर्मिंग द मूविंग बाउंड्री, ठीक है। हम लोग देखे थे, एक बार फिर देख लेते हैं। ये सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है, इसको बोलते हैं टीडीसी, इसको डिटेल में देखेंगे अभी हम लोग, घबराने की बात नहीं है। इसको बोलते हैं बीडीसी, टॉप डेड सेंटर, जहां तक हमारा पिस्टन जाता है और वहां से रिवर्सल हो जाता है, रिवर्ट बैक हो जाता है। बॉटम डेड सेंटर, जहां तक मिनिमम पॉइंट जहां पे ये हमारा पिस्टन जाता है और फिर रिवर्ट बैक होके टीडीसी पे जाता है, ठीक है। तो ये पिस्टन का जो अरेंजमेंट है वो क्या करेगा, जो इसमें गैसेस हैं, एयर्स है और जो हमारा चार्ज है, यानी चार्ज हमारा क्या है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर, उसके अंदर बम्बार्डमेंट होता है और वो क्या करता है उसको एक साथ अप एंड डाउन थ्रू एंड फ्रो मोशन में इसको मूव करता है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ सिलेंड्रिकल कंपोनेंट। ये यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 2D में है, ठीक है, ये रेक्टेंगल टाइप का आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन ये ये गोला समझ लीजिए, गोल टाइप का सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। बहुत लोग देखे होंगे नेकेड आइज से, इसको हम लोग यहाँ पे 2D में विजुअलाइज कर रहे हैं। ये एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट होता है, इसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्मिंग होती है। ये कुछ ऐसा होता है, वैसे इससे भी था, ये सिलेंड्रिकल आप लोगों को दिख रहा होगा, सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट, ठीक है। ये सिलेंडर है और यहाँ जो इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये हमारा क्या दिखाई देगा, रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है, ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जब इसको नेकेड आई से देखेंगे हम लोग तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में पूरा दिखाई देगा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे साइड में होता है पिस्टन रिंग, ठीक है। पिस्टन रिंग के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। पिस्टन रिंग क्या करता है, जो मिक्सचर होते हैं उसको स्वेप करता है अच्छे से, ठीक है, और क्या करता है कूलिंग में भी उसका रोल होता है। ये किसका बना होता है, कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील का, यानी जो हमारा पिस्टन है वो किसका बना होता है, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का, कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं, पिस्टन क्या है, इट इज अ सिलेंड्रिकल कंपोनेंट। यहाँ पे हम लोग 2D में रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है, अभी हम लोग देखे थे विद द हेल्प ऑफ सीट, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। सिलेंड्रिकल कंपोनेंट फिटेड इनटू द सिलेंडर, ये सिलेंडर है पूरा, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर में फिट है, फिटेड इनटू सिलेंडर फॉर्मिंग द मूविंग बाउंड्री ऑफ द कंबशन सिस्टम। और ये किसका बना होता है, कास्ट स्टील का या कास्ट आयरन का, ठीक है। फिर आते हम लोग इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व पे। पिछले डायग्राम में जो आप लोग बनाए हुए हैं उस डायग्राम में देखे थे, यहाँ पे क्या था, इनलेट वाल्व था और यहाँ पे ये एग्जॉस्ट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द इंजन क्या होता है, इनलेट वाल्व साइड से क्या होता है, ये एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर सक करता है फ्रॉम द इनलेट वाल्व साइड
and after the compression the whole air fuel mixture which is combustible gases are go out from the system through exhaust valve। ठीक है, तो ये क्या होता है, valves। तो देखते हैं valves are commonly mushroom shape। ये जो होते हैं valves, इसका शेप क्या होता है, मशरूम टाइप का। मशरूम तो आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट। इसको नीचे कर देते हैं, तो क्या होता है, ऊपर से थोड़ा ओवल होता है, ये ओवल होता है मशरूम टाइप का। ठीक है, तो इनलेट वाल्व भी हमारा क्या है और एग्जॉस्ट वाल्व भी क्या है, मशरूम टाइप अरेंजमेंट होता है। ठीक है, फिटेड इनटू द सिलेंडर फॉर्मिंग द मूविंग बाउंड्री, फॉर्मिंग द मूविंग बाउंड्री ऑफ द कंबस्ट, सॉरी ये कहाँ चला गया, इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व। Valves are commonly mushroom shaped, ये क्या होता है, मशरूम शेप्ड होते हैं। Puppet, they are provided either on the cylinder or on the side of the cylinder। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ होता है, इनलेट वाल्व या तो सिलेंडर के अपर साइड में होता है या तो साइड में दिया होता है। ठीक है, साइड में आप लोग अगर एक्सटर्नल कंबशन इंजन कभी देखे होंगे तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में साइड में ये वॉल्व दिया होता था। ठीक है, जो आप वीडियो या कहीं पे सर्च कर सकते हैं, ये साइड में वॉल्व होता है। टू स्ट्रोक इंजन में भी साइड में ही होता है ये। टू स्ट्रोक इंजन आप देखेंगे तो वहां भी ये क्या जो वॉल्व है, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व, वो साइड में होते हैं। यहाँ पे हम लोग जनरली 4 स्ट्रोक इंजन में इसको अपर साइड में रखते हैं, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व को। नेक्स्ट हमारा कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड एज क्लियर फ्रॉम नेम, कनेक्टिंग रॉड किसको किसको कनेक्ट करता है, पिस्टन को क्रैंक से। कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, फिर डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। ये सिर्फ और सिर्फ पिस्टन का बना रहे हैं, पिस्टन, और ये किसके साथ कनेक्ट हो गया, क्रैंक के साथ। ये हमारा क्या है, कनेक्टिंग रॉड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हर जगह आप लोग देखेंगे सीआर के फॉर्म में लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या बताता है कनेक्टिंग रॉड के बारे में। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड क्या है, इट इज द इंटर कनेक्ट द पिस्टन एज क्लियर फ्रॉम नेम। पिस्टन और क्रैंक साइड को ये रॉड कनेक्ट करेगा। तो क्या है ये, इट इज द इंटर कनेक्ट द पिस्टन एंड द क्रैंक शाफ्ट and transmit the gas forces from the piston to the crankshaft। ठीक है, जो कंबसन जब हुआ, जब एग्जॉस्ट हमारा स्टेप आता है तो ये बॉटम डेड सेंटर पे आता है और ये क्या करता है, इसको मूव कराता है। कनेक्टिंग रॉड की सहायता से हम लोग क्रैंक को मूव कराते हैं। वहां से क्रैंक पिन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जो हमारा शाफ्ट पिन भी लगा होता है या इंजन पिन भी जो लगा होता है, उसके थ्रू हम लोग शाफ्ट को पावर सप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां से ये देखिए, यहां पे हम लोग इसको इंजन साइड में लिखा होता है, ये इंजन साइड है। इसके बाद ये इंजन से लिंक हो जाएगा और ये क्या करता है, जब ये हम लोग बॉटम डेड सेंटर पे आते हैं तो इसको ये यहाँ पे जो शाफ्ट अटैच होता है वो पावर सप्लाई करता है। ठीक है, यहाँ लोग समझ में आ गया। तो कनेक्टिंग रॉड क्या है, पिस्टन का जो पावर है वो हम लोग थ्रू द क्रैंक शाफ्ट हम लोग क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं इंजन शाफ्ट को। ठीक है, ये किसका बना होता है, फोर्ज स्टील का। कनेक्टिंग रॉड किसका बना होता है, फोर्ज स्टील। फोर्ज स्टील का बना होता है। ये एग्जाम में आते हैं बेसिकली। ये हम लोग जब कंप्रेसर एग्जाम देंगे तो ये किस मेटेरियल का क्या बना होता है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड किसका बना है, फोर्ज स्टील का। लास्ट गजन पिन, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज गजन पिन, बट वी इनिशियली नोन एज ए
पिस्टन पिन, पिस्टन पिन के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। कहाँ होता है पिस्टन पिन या गजन पिन? ये जो पिन है इसको हम लोग बोलते हैं पिन। ये किसको कनेक्ट करता है? कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन पिन और गजन पिन। ठीक है, तो इसका काम जैसे कि हम लोग डायग्राम से देख के लग रहा है, ये पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करता है। गजन पिन और पिस्टन पिन क्या करता है? पिस्टन को और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करता है। सो लिख सकते हैं हम लोग, इट लिंक्स द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एंड द पिस्टन। गजन पिन क्या करता है? ये नाम से या फोटो से दिख रहा हम लोग को यहाँ पे, इट लिंक्स द स्मॉल इन ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पिस्टन या पिस्टन साइड भी। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे स्मॉल इन लिखने का मतलब कि ये जो कनेक्टिंग रॉड जिससे पिस्टन जहां पे कनेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्मॉल इन। ठीक है, और ये जो कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड के साइड, सॉरी क्रैंकशाफ्ट के साइड, इसको बोलते हैं हम लोग बिग एंड। ये जब आप लोग डिजाइन पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ आईसी इंजन कंपोनेंट, तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा कि स्मॉल एंड साइड कौन सा है और बिग एंड साइड कौन सा है और क्यों बोलते हैं। उसका आंसर हमारे कनेक्टिंग रॉड के जो डिजाइन है उसी में छुपा हुआ है, तो वो हमारा मैटर नहीं है, वो हम लोग को नहीं देखना है। ठीक है, तो पिस्टन पिन, इट लिंक द स्मॉल एंड या पिस्टन साइड लिख सकते हैं टू द कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो गजन पिन क्या करता है? इट लिंक द स्मॉल एंड, जिसको हम लोग पिस्टन साइड बोलते हैं, टू द कनेक्टिंग रॉड। और ये किसका बना होता है? हार्डन स्टील का। किसका बना होता है ये? हार्डन स्टील का। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? कुछ नॉमेनक्लेचर, इंजन नॉमेनक्लेचर, जिसको हम लोग थ्रू आउट द लाइफ याद करना होगा, समझना होगा। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग को ये टर्म्स तो आने ही आने चाहिए। ठीक है, हाँ कुछ और टर्म्स है उसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन वो किस मटेरियल का बना होता है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि चूंकि वो एग्जाम में आता है, तो एक बार देख लेते हैं। एक है क्रैंक रॉड, डायग्राम में दिखाई दिया था, तो क्रैंक रॉड किसका बना होता है? फोर्ज स्टील का। किसका बना होता है? मटेरियल यहां लिख ले, फोर्ज स्टील। और क्या है? जो साफ्ट है, ठीक है, साफ्ट कहाँ दिखाई दिया आप लोग को? कई जगह साफ्ट देखे आप लोग। तो साफ्ट किसका बना होता है? हार्डन स्टील विथ स्मूथ फिनिश। जो साफ्ट है, किसका बना होता है? हार्डन स्टील का। आप लोग देख रहे होंगे हार्डन स्टील का यहाँ कंपोनेंट ज्यादा है। हार्डन स्टील विथ स्मूथ फिनिशिंग। स्मूथ फिनिशिंग इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है अगर उसमें वियर एंड टियर होगा तो उसमें क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी। और चूंकि शाफ्ट हमारा ऑलवेज रोटेटिंग कंडीशन में होता है, तो ब्रेकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो हम लोग मशीन डिजाइन में देखेंगे, जो कि आप लोग अगले सेमेस्टर में है। शाफ्ट हार्डन स्टील विथ स्मूथ फिनिश। लास्ट नहीं,
सिलेंडर लाइनर। ठीक है, सिलेंडर लाइन किसका बना होता है? निकिल एल्यूमिनियम एलॉय का। सिलेंडर लाइंस किसका बना होता है? निकिल एल्यूमिनियम एलॉय का। ठीक है, एक और कंपोनेंट छूट रहा है, पिस्टन रिंग। इसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग? पिस्टन के हेड पे लगा होता है अपर साइड में। जनरली ये पिस्टन के अपर साइड में होता है, लोअर साइड में लोग पिस्टन रिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो पिस्टन रिंग का काम क्या है? वो क्या करता है? वॉशअप करता है, यानी जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर है इंक्लूडिंग जो हमारे कूलेंट उसमें यूज करते हैं, उसको क्या करता है? स्वेप्ट करता है। तो क्या है? पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग किसका बना है हमारा? सिलिकॉन एंड कास्ट स्टील एलॉय। एंड कास्ट स्टील एलॉय। These are the engine nomenclature। ये इंजन नॉमेनक्लेचर है। क्रैंक रॉड देख चुके हैं, फोर्ज स्टील, शाफ्ट हार्डन स्टील विथ स्मूथ फिनिशिंग, सिलेंडर लाइंस निकल एल्यूमिनियम एलॉय, पिस्टन रिंग सिलिकॉन कास्ट स्टील। पिस्टन हमारा कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील का बना है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? डिफरेंट इंजन नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट टर्म्स है जो हम लोग को न्यूमेरिकल में मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।